Hello everyone. In today's video, we'll be discussing about the campus tour. Hello again. I'm Anushka Sakpal, an MBBS student studying at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, सेवाग्राम वर्धा। इस वीडियो में मैं दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करूँगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे आना है वर्धा में, सेवाग्राम में, MGIMS में, आपकी जगह से हम वो देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तीसरी चीज़, हम पूरा कैंपस देखेंगे, हॉस्टल देखेंगे, मेस देखेंगे, हॉस्टल रूम देखेंगे, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, फर्स्ट ईयर के सारे डिपार्टमेंट देखेंगे। Let us take a look at the fee system. This is from the official MGIMS website. Now there are two things, general and reserved category. पहले आपको 3,04,400 भरना पड़ेगा for general, and for reserve 2,84,400 भरना पड़ेगा। उसमें से deposition for general is 1,20,000 and for reserved is 1 lakh. Following year, second to fourth year में 1,60,300 भरना पड़ेगा for both the categories. After the end of 5.5 years, you'll get 1,20,000 वापस जो हमने deposit किया था। So total fees after 5.5 years is 6,65,300. ये estimated total fees है, values can change. आइए अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। Does MGIMS have a uniform? No. There is no specific uniform for MGIMS, but you have to follow a certain dress code, which is wearing khadi ka kurti and pajama for a girl and pant and shirt of khadi for a boy. Girls can wear sports shoes or sandals. Boys have to wear office shoes. इसके साथ साथ आपको खादी का एप्रन भी लेना पड़ेगा along with the MGIMS logo. There are many shops in Wardha near सेवाग्राम near the college जहाँ पर आप ये सब परचेज कर सकते हैं। Now, without any further ado, let's start our campus tour. Situated in Sevagram Wardha is Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences. It is a very prestigious institute. It was established in the year 1969. As we enter into the main premise, we see lots of greenery and lots of vegetation. This is a चौराहा. चौराहे के left की तरफ we have girls hostel. On the slight left we have boys hostel. Continuing to the previous picture, slight left boys hostel, see the main hospital, and on the right we have the way to our main college building. जैसे ही हम चौराहे से राइट लेते हैं, हमको मेन कॉलेज बिल्डिंग का रास्ता दिखता है। इट इज़ फिल्ड विद ग्रीनरी, इट इज़ फिल्ड विद ट्रीज अराउंड अस। बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे हॉस्टल से हमारी मेन कॉलेज बिल्डिंग तक 300 मीटर का रास्ता है, सो इट इज़ अ वेरी ईजीली वॉकेबल डिस्टेंस। वी हैव अ रिसर्च सेंटर हियर एज वेल विच रिसर्चेस ट्रॉपिकल डिजीजेस। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे मेन कॉलेज बिल्डिंग में, हमको 3 रास्ते दिखते हैं, लेफ़्ट, सीधा एंड राइट। लेफ़्ट में है बायोकेम एंड एनाट, सीधा हॉस्पिटल एंड राइट में फिजियो डिपार्टमेंट। लेट्स टेक अ लुक इनटू आवर एनाटॉमी हॉल फर्स्ट। एनाटॉमी हॉल इज़ enormous. It is very huge, but it is also very beautiful at the same time. यहाँ पर हमारे most of the lectures होते हैं। After the anatomy hall, let us take a look at the biochemistry section. Biochemistry department has 2 important sections for student division. The first one is an experimental lab and the second one is discussion room. जो भी experiments हम करने वाले हैं वो discussion room में पहले discuss किए जाते हैं। After leaving biochemistry department, let us go to the main hospital building. The main hospital is enormous. It is a 1000-bedded hospital. हॉस्पिटल का नाम है कस्तूरबा हॉस्पिटल। आसपास के सारी एरिया से, वर्धा, सावंगी और adjoining एरिया से लोग यहाँ पर आते हैं because this is a government hospital. जैसे ही हम अंदर देखते हैं there are several departments. बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप पेशेंट लोड भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। यह वीडियो वेडनेसडे को शॉट की गई थी और एक वीक डे पर भी, और वो भी 10 बजे के आसपास इतने सारे पेशेंट्स, मतलब इमेजिन करिए
यहाँ का पेशेंट लोड कितना होगा और यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कॉलेज और हॉस्पिटल में 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, एक मेडिसिन के लिए, एक सैम्पल कलेक्शन के लिए और एक मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट आज बन चुका है। लेट अस गो टुवर्ड्स द एनाटमी, डिसेक्शन हॉल एंड द फिजियो लैब। सबसे पहले एनाटमी का डिपार्टमेंट देखते हैं। एनाटमी के डिपार्टमेंट में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है साइटोजेनेटिक्स, उसके बाद है हमारा बड़ा सा म्यूज़ियम के सीधा जाएंगे तो हमको मिलेगा हमारा हिस्टोलॉजी हॉल। हिस्टोलॉजी हॉल में 50 बच्चों के लिए 50 अलग अलग माइक्रोस्कोप्स रखे हुए हैं। और फाइनली डाइसेक्शन। सबसे पहले देखते हैं म्यूज़ियम हमारा बहुत बड़ा है और यहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है डॉक्टर सुशीला नायर जी की। डॉक्टर सुशीला नायर इज़ द फाउंडर ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा म्यूज़ियम है। यहाँ पर सारे स्पेसिमेंस ये सारे मॉडल्स हमें डेमो में काम आते हैं, हमें डेमो में सिखाए जाते हैं। दिस इज़ द ब्यूटिफुल एंड ह्यूमंगस डाइसेक्शन हॉल। यहाँ पर 4 से 5 बॉडीज़ निकाली जाती हैं, एक टेबल पे 25 स्टूडेंट्स रहते हैं। डाइसेक्शन हॉल के अंदर ही एक क्लासरूम है, यहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं। एंड दिस इज़ द वॉश बेसिन एरिया जहाँ पर हम हाथ धोते हैं। जैसे ही हम एनाटमी डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं, वी एंटर इनटू द फिजियो डिपार्टमेंट, बट बिफोर दैट वी हैव टू क्लाइंब सम स्टेयर्स बिकॉज फिजियो डिपार्टमेंट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फिजियो डिपार्टमेंट पूरा फर्स्ट फ्लोर कवर करता है। इट इज़ अ वेरी ह्यूज डिपार्टमेंट। यहाँ पर अलग अलग फिजियो लैब्स हैं, जैसे कि स्लीप स्टडी लैब, न्यूरोफिजियोलॉजी लैब, ह्यूमन फिजियोलॉजी लैब, हेमाटोलॉजी लैब, क्लिनिकल लैब, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी लैब, एक्सेट्रा। आजकल हमारे लेक्चर्स जो है वो क्लिनिकल बेसिस पे चल रहे हैं, इसलिए हम सब क्लिनिकल लैब में बैठ रहे हैं। दिस इज़ द क्लिनिकल लैब। यहाँ पर 5 बेड्स हैं, 10 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और एक बच्चा पेशेंट बनता है और उसके ऊपर सारे क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है एंड बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, बहुत ही सपोर्टिव एटमॉस्फेयर है। दिस इज़ द फिजियोलॉजी लेक्चर हॉल वेरिन हमारे फिजियोलॉजी के लेक्चर्स होते हैं। वन पेक्यूलियर थिंग अबाउट फिजियो डिपार्टमेंट इज़ दिस वॉल। यहाँ पर सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स की पिक्चर्स लगाए हुए हैं जिन्होंने भी फिजियोलॉजी में अपना योगदान दिया है। जैसे ही हम फिजियोलॉजी के लैब से उतरते हैं, डिपार्टमेंट से उतरते हैं, हम एग्ज़िट की तरफ जाते हैं। लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट आवर ब्यूटिफुल हॉस्टल्स। सबसे पहले हम देखेंगे गर्ल्स हॉस्टल। दिस इज़ द रूट, जिस रास्ते से हम आए थे वापस उसी रास्ते से जाएंगे। फिर एक चौराहा आएगा और उस चौराहे से सीधा जाकर हमें दिखेगा JN गर्ल्स हॉस्टल। JN स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू। सो हमारे हॉस्टल का नाम है जवाहरलाल नेहरू गर्ल्स हॉस्टल। इट इज़ वेरी बिग, वेरी ह्यूज। अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी क्लीन। ये जो आपको दिख रहा है ये सिक्योरिटी कैबिन है, यहाँ पर हमें एंट्री करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर के लिए द इन टाइम इज़ 9:30। दिस इज़ वार्डन मैम्स हाउस। वार्डन मैम भी यहाँ पर ही रहती है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है सिक्योरिटी की। ये बाहर के कुछ नज़ारे हैं। जैसे ही हम हॉस्टल एंटर करते हैं, ये हॉस्टल का एंट्रेंस है। 2 रास्ते दिखते हैं, एक सीधे जो हमारा ब्लॉक है और राइट की तरफ मेस है। हमारा जो ब्लॉक है या जो फर्स्ट ईयर्स का ब्लॉक है वो H ब्लॉक है। हर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यहीं पर रहते हैं एवरी ईयर, बिकॉज़ यहाँ पे वार्डन मैम का ऑफिस है। सो रैगिंग के केसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये जो है ये वार्डन मैम का ऑफिस है। हमारा जो हॉस्टल है इसके 2 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे 20 रूम्स है, फर्स्ट फ्लोर पे 20 रूम्स है। मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, इसलिए हम ऊपर जाते हैं। लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड टेक अ लुक एट माय रूम। ये जो है ये मेरा रूम है। यहाँ पे कॉलेज वालों ने बेड, चेयर, डेस्क, स्टडी रैक या बुक रैक एंड कबोर्ड प्रोवाइड किया है। एवरी स्टूडेंट गेट्स 1 रूम, मतलब आपको रूम किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है।
एक बच्चे को एक रूम मिलता है। रूम एक बच्चे के रहने लायक काफ़ी बड़ा है और ठीक है। ये हमारे ब्लॉक की कुछ तस्वीरें हैं। हमारा ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलिए अब मेस चलते हैं। द मेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये जो रास्ता है मेस की तरफ जाने का वो भी काफ़ी सुंदर है। मेस में काफ़ी सारे फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। ये हमारा मेस है। This is the kitchen and this is the place where we sit and have our lunch or dinner. This is the beautiful mess. This is the drinking water area. यहाँ पे कूलर्स लगाए हुए हैं, ROs लगाए हुए हैं. This is the place wherein we wash our utensils. बर्तन धोने की जगह। मेस से अगर हम राइट की तरफ मुड़ेंगे तो हमको जिम मिलेगा। ये जो जिम है यहाँ पर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है जो आप जिमिंग कर सकते हैं। लेट्स गो टू द बॉयज़ हॉस्टल नाउ। जो फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल है ये अलग है सीनियर्स के बॉयज़ हॉस्टल से। ये एकदम नया बनाया हुआ है और ऑडी रोड की तरफ है। यहाँ पे एकदम सीधा सीधा जब जाएंगे तब हमें एक डाइवर्जन मिलेगा। राइट की तरफ कोरोना ब्लॉक है या फिर ये हॉस्पिटल के साथ कंटिन्यूएशन में है और ये देख सकते हैं आप हॉस्पिटल है। और लेफ़्ट की तरफ सबसे पहले तो ये हमारा ICH है और इसके अलावा ये जो दिख रहा है आपको ये है मैरिड PG। जो भी PG कर रहे हैं लेकिन कपल्स है और मैरिड है वो यहाँ पर रह सकते हैं। दिस इज़ द न्यू PG। ये नया PG की जगह है। यहाँ पे राइट की तरफ हमारा फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल है। द फर्स्ट ईयर बॉयज़ हॉस्टल इज़ रिसेंटली रेनोवेटेड एंड इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ वेरी ह्यूज। यहाँ पर हर गार्ड बैठता है एवरी डे टू गार्ड द हॉस्टल प्रेमाइसेस। Now this hostel has 3 floors. Let's take a look at the interior कि रूम कैसा है। रूम्स बड़े हैं, एवरेज साइज्ड है। जैसे जितने गर्ल्स हॉस्टल के हैं उतने ही इनके भी है। इनको बैल्कनी दी जाती है एंड सेम चेयर, चेयर, बुक रैक वगैरह वगैरह इनको भी मिलते हैं। नाउ बॉयज़ हॉस्टल से सीधा जो रोड जाता है ये है ऑडी का रोड है। इस रोड के एंड में ऑडी है। ऑडी एज एन ऑडिटोरियम। हमारा जो कैंपस है ये 450 एकर्स का है। सो 450 एकर्स की ज़मीन में, इतनी बड़ी ज़मीन में ये हमारा ब्यूटीफुल सा MGIMS का कैंपस बनाया गया है। जैसे ही आप सीधा सीधा जाएंगे आपको काफ़ी सारे बिल्डिंग्स दिखेंगे। ये या तो रेजिडेंशियल एरियाज़ है या तो फिर कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है। ये है ऑडी। ऑडिटोरियम में वंस एवरी मंथ हमारे गांधीयन थॉट्स पे लेक्चर्स होते हैं वेरिन गांधीयन थॉट जो प्रीच करते हैं उन्हें बुलाया जाता है और हमारे लेक्चर्स लिए जाते हैं। नाउ दिस इज़ अ क्लासरूम। ऑडिटोरियम में 3rd and 4th ईयर के लेक्चर्स होते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल ऑडी के क्लासरूम्स। ऑडी का टेरेस में जब हम जाएंगे तो हमारे को पूरा कैंपस का व्यू मिलता है। सेवाग्राम और हमारा कैंपस पूरी अच्छी सी नेचर के साथ एकदम जुड़ा हुआ है। नेचर से सराउंडेड है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। ऑडी के कैंपस, ऑडी के टेरेस से सब कुछ दिखता है बहुत अच्छे से। पूरा कैंपस दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर जगह है। बहुत ही मज़ा आता है इस जगह पर रहने के लिए।